Hello children, today we are going to start our lesson number 5, which is Shapes and Design. As you all are familiar with the basic shapes like circle, triangle, square, rectangle. So we will once again go through this topic where we will see shapes and objects of that particular shapes. So let's start. Children, can you tell me which shape is this? Yes, it's a circle. Some circle shaped objects. Here you can see a wheel, ring, tomato, candy, button and many other objects. So all these are circle shaped objects. Next. Now which shape is this? Yes, triangle. It has 3 sides. Some triangle shaped objects. So you can see here a boat, a cone, pizza slice. So these are some triangle shaped objects. Let's move on to next shape. Which shape is this? Yes, it's a square. It has 4 equal sides. Now some square shaped objects. Here you can see many objects that are of square shape like clock, blocks, gift, chessboard, etc. Now next. Which shape is this? Yes, this is rectangle. Some rectangle shaped objects. Here you can see calculator, bed, mobile, card, frame, door, etc. So all these objects are of rectangle shape. Now this figure is given in your textbook. They have asked you to fill colors in this figure, but you have to color according to the shapes. In triangle you have to fill red color. In square you have to fill yellow color. In rectangle you have to fill blue color. And in circle you have to fill green color. So you have to do this in your textbook. After coloring it according to the colors mentioned, the figure will look like this. Here you can see I have colored the triangle shapes with red color. See this? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So I have colored it red. Now square. So in square we have to fill yellow color. So this is square, this is square, this is square and this is also a square. Next you have to fill blue color in rectangle. So here you can see 1, 2, 3. So 3 rectangles are given. Next you have to color circle green color. So this is circle, this is circle, these are also circles and this is also a circle. So I have filled green color in circle shape. So you have to do this work in your own textbook. And our figure is ready. In next question, they have asked
how many triangles are there in the following figures? So you have to find yourself and write the answers in your textbook. इसमें क्या करना है आपको? इन फिगर्स को केयरफुली ऑब्जर्व करना है और देखना है कि आपको इसमें कितने ट्रायंगल्स मिलते हैं. So you have to do this yourself in your textbook. In next question they have asked find the biggest rectangle. तो इसमें क्या करना है आपको? बिगेस्ट रेक्टेंगल फाइंड करना है. सो सम फिगर्स आर गिवन इन योर टेक्स्ट बुक. इन ईच फिगर यू हैव टू फाइंड द बिगेस्ट रेक्टेंगल. आपको आपकी टेक्स्ट बुक में 2-3 फिगर्स दी गई हैं. आपको हर एक फिगर में फाइंड आउट करना है क्या? बिगेस्ट रेक्टेंगल. ठीक है, इसी शेप में से आपको बिगेस्ट रेक्टेंगल जो है वो निकालना है, वो फाइंड करना है. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिगेस्ट रेक्टेंगल हेयर? यहाँ पर बिगेस्ट रेक्टेंगल का मतलब क्या है? See, the figure is made up of blocks. तो यहाँ पर biggest rectangle का मतलब है कि शेप जो आपको ढूंढनी है इसमें वो एक तो रेक्टेंगल होनी चाहिए, प्लस आपको ज्यादा से ज्यादा ब्लॉक्स जो हैं वो कवर करने हैं, वो ही बिगेस्ट रेक्टेंगल होगा. अब इसका प्रॉपर मीनिंग क्या है वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे. As you can see in this figure, this is the biggest rectangle because it is covering more blocks. So after watching the next example it will become clear. So next shape is this. It's a fish figure. तो इस फिगर में क्या करना है आपको? इस फिगर में भी आपको जो है वो बिगेस्ट रेक्टेंगल फाइंड करना है. तो हम देखते हैं. Now children observe carefully. अब ये सेम फिगर है बट हमने इसमें 2 रेक्टेंगल्स फाइंड किए. एक रेड वाला जो है और एक जो ग्रीन वाला है. दोनों ही जो है वो रेक्टेंगल शेप है. दोनों में ही हमने रेक्टेंगल शेप फाइंड की, बट हमको ढूंढना है बिगेस्ट रेक्टेंगल. तो बिगेस्ट रेक्टेंगल कैसे पता चलेगा हमको? जब हम ये ब्लॉक्स काउंट करेंगे. तो जिसमें ज्यादा ब्लॉक्स कवर हो जाएंगे वो हमारा बिगेस्ट रेक्टेंगल होगा. तो देखते हैं इसमें कितने ब्लॉक्स कवर हो रहे हैं. देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. तो यहाँ पर कितने ब्लॉक्स कवर हो रहे हैं? 16. बट इसमें हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. तो यहाँ पर कितने ब्लॉक्स कवर हो रहे हैं? यहाँ पर 12. अब दोनों ही शेप रेक्टेंगल हैं, बट हमको क्या फाइंड आउट करना है? हमको फाइंड आउट करना है बिगेस्ट रेक्टेंगल. तो बिगेस्ट रेक्टेंगल कौन सा होगा? इसमें हमारे कितने ब्लॉक्स कवर हो रहे हैं? 16. जबकि हमारी इस वाली फिगर में सिर्फ 12 ब्लॉक्स कवर हो रहे हैं. तो बिगेस्ट रेक्टेंगल होगा ये वाला, फर्स्ट वन. So this is the biggest rectangle. Okay. Now next, आपकी नेक्स्ट फिगर है ये. अब आपको इसमें भी जो है वो बिगेस्ट रेक्टेंगल फाइंड आउट करना है. Now observe carefully. अब हम यहां देखेंगे तो अगर हम इसमें रेक्टेंगल फाइंड आउट करें तो हमको एक यहां पर रेक्टेंगल मिला और एक यहां पर रेक्टेंगल मिला. बोथ आर रेक्टेंगल, दोनों ही रेक्टेंगल हैं, बट हमको क्या फाइंड आउट करना है? हमको बिगेस्ट रेक्टेंगल फाइंड आउट करना है. तो वो हमको कैसे पता चलेगा? ब्लॉक्स काउंट करने पे कि कौन सा ज्यादा बड़ा रेक्टेंगल है. तो जिसने ज्यादा ब्लॉक्स कवर किए होंगे वो हमारा बिगेस्ट रेक्टेंगल हो जाएगा. सो वी विल चेक. इस रेक्टेंगल में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32. तो इस फिगर में हमारे 32 ब्लॉक्स जो हैं वो कवर हो रहे हैं. ठीक है.
और हम इसमें देख लेते हैं कि हमारे कितने ब्लॉक्स कवर हो रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 20 24। सो इस फिगर में कितने हो रहे हैं? 24 ब्लॉक्स कवर हो रहे हैं। दोनों ही रेक्टेंगल हैं, बट हमको बिगेस्ट रेक्टेंगल फाइंड आउट करना है। तो इस वाली शेप में इस वाले रेक्टेंगल में हमने 32 जो थे स्क्वायर्स वो फिल किए, वो उसमें बनाए हमने, जबकि इस वाली फिगर में कितने हुए? 24 हुए। तो ज्यादा ब्लॉक्स किस में कवर हो रहे हैं? फर्स्ट वन। सो 32 जो ब्लॉक्स हैं वो इसमें कवर हो रहे हैं, तो बिगेस्ट रेक्टेंगल कौन सा होगा? ये वाला। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज द आंसर। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट फिगर दे रखी है आपको ये। इसमें भी आपको बताना है कि कौन सा सबसे बिगेस्ट रेक्टेंगल है। अब इसमें भी बहुत सारे रेक्टेंगल्स हैं, बट वी हैव टू फाइंड द बिगेस्ट रेक्टेंगल। अब आप ध्यान से देखो, एक रेक्टेंगल मिला हमको ये, जो कि काफी बड़ा है, और एक मिला हमको रेक्टेंगल ये वाला। अब बिगेस्ट रेक्टेंगल कौन सा है? तो हमें कैसे पता चलेगा? वी हैव टू काउंट। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 20 24 25 26 27 28। सो इस रेक्टेंगल में कितने ब्लॉक्स कवर हो रहे हैं? 28। इसमें काउंट कर लेते हैं हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 20 24 25 26 27। इसमें कितने हो रहे हैं? 27। बट इस फिगर में हो रहे हैं 28 ब्लॉक्स कवर। तो बिगेस्ट रेक्टेंगल कौन सा होगा? फर्स्ट और सेकेंड? यस, फर्स्ट वन, बिकॉज उसमें ज्यादा ब्लॉक्स जो है हमारे कवर हो रहे हैं। 28 ब्लॉक्स कवर हुए, तो वो हमारा बिगेस्ट रेक्टेंगल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट। सो दिस इज अ रूम। नेक्स्ट टॉपिक इज एजेस एंड कॉर्नर। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? एजेस के बारे में और कॉर्नर के बारे में। So a game or situation is given to you. Meeta and her 5 friends were playing a game. Tinku was blindfolded and asked to keep clapping as long as he wished, while the others would move around a table. The moment Tinku stopped clapping, everybody would stop wherever they were. The child who was not at a corner would be out. Then he would be blindfolded. तो यहाँ पर मीता और उसके जो 5 फ्रेंड्स हैं वो एक टेबल के पास जो हैं वो एक गेम खेल रहे हैं। उन्होंने सेंटर में क्या रखा? एक सेंटर में उन्होंने रखा एक टेबल, और उसके आसपास वो गेम खेल रहे हैं। वो गेम क्या है? टिंकू को उन्होंने ब्लाइंड फोल्ड किया। अब टिंकू एक उनका फ्रेंड है, उसको उन्होंने क्या किया? ब्लाइंड फोल्ड। ब्लाइंड फोल्ड क्या होता है? हम आंखों पे पट्टी बांध देते हैं ना खेलते वक्त, तो उसको हम बोलते हैं ब्लाइंड फोल्ड। तो उन्होंने क्या किया? टिंकू की आंखों पर उन्होंने जो है वो पट्टी बांध दी। ठीक है, और उसे क्या कहा? उसे कहा कि तुम जब तक चाहे क्लैप करते रहो। ठीक है, और जब तक वो क्लैप करेगा बाकी बच्चे क्या करेंगे? वो टेबल के गोल गोल घूमेंगे, टेबल के अराउंड घूमेंगे। और जैसे ही टिंकू जो है वो क्लैप करना स्टॉप करेगा, सबको कहाँ खड़ा होना है? जाके सबको टेबल के कॉर्नर्स में जाके खड़ा होना है। ठीक है, और जो उनमें से बच्चा कॉर्नर पे नहीं होगा वो जो है आउट हो जाएगा। ठीक है, तो गेम में क्या करना है? उनको कॉर्नर्स पे खड़ा होना है जाकर, और जिसको कॉर्नर नहीं मिल पाया वो आउट हो जाएगा। ठीक है, और फिर वो ब्लाइंड फोल्ड होएगा। हाँ, उसके आंखों पे पट्टी बांधेंगे। So, some questions are given to you. Looking at the picture given above, can you tell who is out? Where is Guddu standing? Can this game be played around a round table? Why? So, we will see the picture. So, this is a picture.
इसमें आप देखो एक सेंटर में टेबल है, वो बच्चे जो हैं उसके आसपास खेल रहे हैं। और हेयर यू कैन सी टिंकू, जिसको ब्लाइंड फोल्ड किया गया है, जिसकी आंख पे पट्टी बांधी गई है। तो इसको क्या करने को कहा कि तुम क्लैप करो, और बाकी बच्चे क्या करेंगे, टेबल के गोल गोल घूमेंगे। और जैसे ही टिंकू क्लैप करना स्टॉप करेगा, सबको कॉर्नर्स पे आके खड़ा होना है, और जो कॉर्नर पे नहीं होगा वो आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन कौन है, यहाँ पर छोटू है, यहाँ गुड्डू है, यहाँ बंटी है, यहाँ मीता है, यहाँ राजा है। तो जैसे ही टिंकू ने क्लैप करना स्टॉप किया, तो ये बच्चे यहाँ पर आकर खड़े हो गए। छोटू यहाँ पर आ गया, बंटी यहाँ पर आ गया, मीता यहाँ आ गई, राजा यहाँ पर आ गया, और गुड्डू यहाँ है। So first question they have asked, looking at the picture, can you tell who is out? आप पिक्चर देख के पहचान सकते हैं कौन आउट हुआ? So it's clearly visible के जो गुड्डू है वो आउट हो गया है, क्योंकि वो किसी भी कॉर्नर पर नहीं है। अब आप छोटू को देखो, छोटू भी कॉर्नर पे है इधर, बंटी को देखो वो भी इधर कॉर्नर पे है, मीता भी इधर कॉर्नर पे है, राजा भी इधर कॉर्नर पे है, बट गुड्डू को कोई कॉर्नर नहीं मिला, तो गुड्डू इज आउट। वेयर इज गुड्डू स्टैंडिंग? गुड्डू कहाँ खड़ा है? गुड्डू इज स्टैंडिंग इन द मिडल, वो बीच में खड़ा है टेबल के, है ना। नेक्स्ट, कैन दिस गेम बी प्लेड अराउंड अ राउंड टेबल? वाई? अब आपसे पूछ रहे हैं क्या ये गेम राउंड टेबल के साथ खेला जा सकता है? सो आंसर इज नो, ये गेम जो है वो राउंड टेबल के साथ नहीं खेला जा सकता। क्यों? क्योंकि राउंड टेबल में तो कॉर्नर्स नहीं होते हैं, है ना, सर्कुलर होता है, उसमें तो कॉर्नर्स होते ही नहीं। तो फिर उधर कोई बच्चा कैसे खड़ा होएगा, है ना। तो ये गेम जो राउंड टेबल है उसके साथ नहीं खेला जा सकता। नाउ what are edges and corners? Here you can see a cube which is a 3D figure. So here we have to focus on edges and corners. So all these blue lines, see this, 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 this. These blue lines are edges, whereas red dots are corners. So see 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 corners are there, and these blue lines are edges. I will show you. See. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. So 12 edges and 8 corners. ठीक है, तो ये क्यूब है, क्यूब की 3D फिगर है ये, ठीक है। तो इसमें कितने एजेस हो गए? 12 एजेस हो गए और 8 कॉर्नर्स हो गए। तो अभी आपको पता चला कि एजेस और कॉर्नर्स में क्या डिफरेंस है। अभी हम आगे और एग्जांपल देखेंगे। यहाँ पर अभी आप देखो कॉर्नर्स को हाईलाइट किया है मैंने, these all are corners. Now we will move to next figure. Now next is cuboid. Children, focus on edges instead of the figure given. Firstly, we have to understand the edges and corners. Then after some time, we will move to number of edges and number of corners in different shapes. So again, all these blue lines are edges. See, edge, this is edge, edge, edge. So ये सभी क्या हैं? ये सभी edges हैं।
और ये क्या है, ये सब कॉर्नर्स हैं। तो अभी क्यूबॉइड शेप में भी कितने कॉर्नर्स होते हैं, कितने एजेस होते हैं, वो हम बाद में करेंगे। बट अभी आपको जो है सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप समझ सको कि एजेस क्या होते हैं और कॉर्नर्स क्या होते हैं। और इन दोनों ही क्यूब में और क्यूबॉइड में दोनों में कैसे एजेस हैं, स्ट्रेट एजेस हैं। ठीक है ना, ये स्ट्रेट है ना एकदम, तो हम इसे बोलेंगे स्ट्रेट एजेस। ओके, सो नाउ हियर यू कैन सी अ बुक। बुक की शेप भी कैसे होती है, बुक की शेप भी इज लाइक अ क्यूबॉइड। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एजेस, बुक के एजेस क्या हो गए, यहाँ पर ये शो किया हुआ है, ये बुक के एज हो गया, ये भी एज हो गया। यहाँ पर स्टैंडिंग पोजीशन है बुक की, तो ये भी एज हो गया, ये वाला भी एज हो गया। दिस इज ऑल्सो एन एज, ये भी आपका एज है यहाँ पर, और बैक साइड में भी। तो ये सभी क्या है, ये सभी आपके हो गए स्ट्रेट एजेस। ठीक है, तो नेक्स्ट हेयर दिस इज अ चेयर। सो यहाँ पर भी आपको एजेस दिखा रखे हैं कि यहाँ पर ये एज है, ये भी एज है। ओके, नेक्स्ट, सो व्हाट इज दिस, दिस इज अ टेबल। तो यहाँ पर भी आपको जो है वो एज दिखा रखा है, ये सभी टेबल के एज हैं। ये सभी एज हैं और यहाँ पर क्या होंगे इसके, यहाँ पर हो जाएंगे इसके कॉर्नर। जैसे कि अभी पिछली एक्टिविटी में वो गेम खेल रहे थे जो सभी बच्चे, तो वो क्या कर रहे थे, वो सभी जो है टेबल के अराउंड मूव कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर ये टेबल के एज हो गया, टेबल का भी एज कैसा है, स्ट्रेट एज है। ठीक है, नाउ ये क्या है, यू ऑल नो इट, काइट्स। तो यहां पर भी आप देख सकते हो ये क्या है, काइट के एजेस। क्या है ये, काइट के एजेस हैं ये भी। ठीक है ना, तो ये हो गए एजेस। अभी हमको क्या पढ़ना है, अभी हमको सिर्फ एज के बारे में और कॉर्नर्स के बारे में पढ़ना है। ओके, नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट। Now here are some objects with straight edges. तो यहाँ आपको पिक्चर दे रखी है कुछ ऑब्जेक्ट्स की जिसमें क्या होता है, जिसमें हमको स्ट्रेट एजेस दिखते हैं। ठीक है ना, जिसमें स्ट्रेट एजेस होते हैं। सो ऑब्जर्व केयरफुली, ये स्केल है, ये लैपटॉप है, कंप्यूटर है, बोर्ड है, तो इन सभी में कैसे एजेस होते हैं, सभी में स्ट्रेट एजेस होते हैं। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट कर्व्ड एजेस। तो अब हम किसके बारे में बात करेंगे, जिसमें कर्व्ड एज होता है। सो हियर इज अ सिलेंड्रिकल शेप, द कर्व्ड पार्ट, जो ये कर्व्ड पार्ट है ना यहाँ पर और यहाँ पर, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे कर्व्ड एजेस। तो ये क्या है, हमारे कर्व्ड एजेस हो गए। ठीक है, इसमें तो कोई कॉर्नर नहीं है। ठीक है ना, तो हम बोलेंगे कि ये हमारे कर्व्ड एजेस हैं। ठीक है ना, जैसे हमने पिछले ऑब्जेक्ट्स में क्या पढ़ा था कि स्ट्रेट एजेस होते हैं, तो इस फिगर में हम क्या पढ़ेंगे, कर्व्ड एजेस। ठीक है, हियर यू कैन सी अ व्हील इज गिवन। तो व्हील में भी कैसे एज होगा, कर्व्ड एज होगा। ठीक है ना, यहाँ पर आपको ये शो किया हुआ है, ये भी होगा कर्व्ड एज। नेक्स्ट, सो यहाँ पर क्या दिखाया गया आपको, प्लेट है यहाँ पर। ठीक है ना, टेबल के ऊपर प्लेट है, तो प्लेट का भी जो ये पार्ट है उसका भी कैसा एज है, वो भी है कर्व्ड एज। ठीक है ना, अभी हमें फोकस करना है यहाँ पर प्लेट पे। ठीक है, टेबल जो हमने है वो हमने देखा लास्ट में, टेबल में होता है स्ट्रेट एज, बट अभी यहाँ पर है प्लेट, तो प्लेट में कैसा एज होगा, कर्व्ड एज। ओके, नाउ हियर आर सम ऑब्जेक्ट्स विद कर्व्ड एजेस। ठीक है, तो ये सभी कुछ ऑब्जेक्ट्स है जहां पर आपको जो है वो कर्व्ड एजेस मिलेंगे। नाउ सम क्वेश्चंस आर गिवन।
Look around you and identify things with straight and curved edges. तो आपसे कहा है कि अपने आसपास देखिए और आइडेंटिफाई करो कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स या थिंग्स आपको दिखाई देते हैं जिसमें स्ट्रेट या कर्व्ड एजेस होते हैं. नाउ स्ट्रेट एजेस किस किस में होते हैं हमने देखा, बुक में, चेयर, टेबल, काइट, डोर, इन सभी चीजों में, इन सभी ऑब्जेक्ट्स में आपको स्ट्रेट एजेस मिलेंगे. वेयर एज कर्व्ड एजेस, तो कर्व्ड एजेस आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, व्हील, प्लेट, बॉटल कैप, कॉइन, कप. तो ये कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जहां पर आपको कर्व्ड एजेस देखने को मिलेंगे. ओके, नाउ नेक्स्ट, डू द थिंग्स विद स्ट्रेट एजेस हैव कॉर्नर्स. तो क्या जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें स्ट्रेट एजेस होते हैं तो क्या उसमें कॉर्नर्स होते हैं? सो आंसर इज यस, थिंग्स विद स्ट्रेट एजेस हैव कॉर्नर्स. तो जो भी जिस भी चीज में आपको स्ट्रेट एजेस मिलेंगे वहां पर कॉर्नर्स भी जरूर होंगे. डू द थिंग्स विद कर्व्ड एजेस हैव कॉर्नर्स. तो आपसे पूछा है कि जहां पर कर्व्ड एजेस आप देख रहे हो, जो ऐसी चीजें हैं जिसमें कर्व्ड एजेस है वहां पर कॉर्नर्स मिलेंगे क्या? तो कर्व्ड एजेस हैं तो कॉर्नर्स तो मिल ही नहीं सकते हैं हमको. सो आंसर विल बी नो, थिंग्स विद कर्व्ड एजेस डजंट हैव कॉर्नर्स. तो जो भी ऑब्जेक्ट्स होंगे जिसमें कर्व्ड एजेस होंगे वहां पर आपको कॉर्नर्स जो हैं वो नहीं मिलेंगे. ठीक है, क्योंकि वो सर्कुलर होता है ना, तो वहां पर कॉर्नर्स तो मिल ही नहीं सकते. सो आंसर विल बी नो. This activity is given in your textbook. What you have to do is, you have to take a rectangular sheet of paper. Count its corners. So let's count. 1, 2, 3, 4. It has 4 corners. Now fold one of its corners. So we will fold one corner. Now, how many corners are there? Let's count. So, 1, 2, 3, 4, 5. So, after folding one corner, we get 5 corners. After that, we will fold one more corner. Now, how many corners are there? Let's count again. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Now 6 corners are there. Now we will fold one more corner. Now again we have to count how many corners are there now. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Now 7 corners are there. Now we have to fold the 4th corner. Now again we have to count how many corners are there. Let's count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Now we have 8 corners in total. Now question is given, can you fold the paper in such a way that it has only 3 corners? You are allowed only 2 folds. तो अब आपको क्या करना है? अब आपको इस पेपर को कुछ इस तरह से फोल्ड करना है कि आपको सिर्फ 3 कॉर्नर्स मिले एंड यू आर अलाउड टू डू ओनली 2 फोल्ड्स. तो हम किस तरह से करेंगे इस पेपर को फोल्ड कि हमको 3 कॉर्नर्स मिल जाए? सो वी विल फोल्ड इट लाइक दिस वे. So as you can see, now we got 3 corners. 1,
2, 3. Now we have 3 corners. Here we got a triangle shape. Now in next activity, you have to take a square sheet. You have to fold all the corners of the square sheet in such a way that the number of corners remain unchanged. अब आपको क्या करना है, अब आपको एक स्क्वायर शीट लेना है. यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर शीट है और हमको इसके सारे कॉर्नर्स जो है वो कुछ इस तरह से फोल्ड करने हैं कि जो इस स्क्वायर शीट के कॉर्नर्स हैं वो अनचेंज रहे, यानी जितने पहले थे उतने ही रहे. तो अभी कितने हैं हमारे पास स्क्वायर्स में कॉर्नर? सो 1, 2, 3, 4. तो अभी इसमें 4 कॉर्नर्स हैं और हमको इस तरह से कुछ इसके सारे कॉर्नर्स फोल्ड करने हैं कि फोल्ड करने के बाद भी जो इसके कॉर्नर्स हैं वो अनचेंज रहे, यानी 4 के 4 ही रहे. तो हम इसे किस तरह से फोल्ड करेंगे? इट्स वेरी इजी. सो हमने ये लिया, हमने इसको यहां से फोल्ड किया. तो हमने इसके चारों जो कॉर्नर्स हैं वो फोल्ड कर दिए हैं और अभी भी फोल्ड करने के बाद भी इस फिगर में कितने कॉर्नर्स हैं? 1, 2, 3, 4. तो जो कॉर्नर्स हैं वो अनचेंज रहे, पहले भी 4 थे और अभी भी 4 है. सो you have to do this activity yourself and paste it in your notebook. Now, question is given. In the following figures, tick those which have corners. Do these figures have curved lines? तो अब इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको? उन फिगर्स पे टिक करना है जिसमें कॉर्नर्स हैं. सो लेट्स सी. फर्स्ट फिगर इज दिस वन. सो इसमें कॉर्नर्स हैं या नहीं? सो यस, यहाँ पर कॉर्नर्स हैं तो हम इस पे टिक करेंगे. नेक्स्ट फिगर इज दिस. इस पे कॉर्नर्स हैं? थिंक यस, ये हमारे यहाँ पर कॉर्नर्स हैं तो यस, इससे भी हम टिक करेंगे. नाउ दिस फिगर इज लाइक स्टेयर्स. स्टेप्स होती है ना, तो उसकी तरह कुछ दिखने वाला जो है ये इस तरह से फिगर है. तो इसमें बहुत सारे कॉर्नर्स हैं. ये है, यहाँ पे है, यहाँ पे भी कॉर्नर्स हैं. ये सभी जो हैं वो कॉर्नर्स हैं. सो इस पे भी हम टिक करेंगे. नाउ नेक्स्ट फिगर इज दिस वन. तो क्या इस फिगर में कॉर्नर्स हैं? नो. तो इस फिगर में कोई कॉर्नर नहीं है. नेक्स्ट इज दिस. इस फिगर में आपको कॉर्नर्स नजर आ रहे हैं? यस. तो इसे भी हम टिक करेंगे. नेक्स्ट इज दिस फिगर. इसमें आपको कोई कॉर्नर्स दिख रहे हैं? नो. तो इस पे हम क्रॉस कर देंगे. एंड लास्ट वन इज दिस. तो क्या इसमें कोई कॉर्नर्स हैं? इसमें भी कोई कॉर्नर्स नहीं है. सो नो. तो किस किस में कॉर्नर्स हैं? कौन कौन से फिगर्स में? एक ये वाली, एक ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली फिगर. इन 4 फिगर्स में जो है वो हमारे कॉर्नर्स हैं. डू दीज फिगर्स हैव कर्व्ड लाइंस? क्या इनमें से किन्हीं फिगर्स में कर्व्ड लाइंस हैं? यहाँ पर दे रखा है कर्व्ड लाइंस. ठीक है ना? तो कर्व्ड लाइंस, यस, सम फिगर्स हैव कर्व्ड लाइंस. कौन कौन से फिगर्स में कर्व्ड लाइंस हैं? इसमें देखो ये कर्व्ड लाइन है, यहाँ पर भी कर्व्ड लाइन दी गई है, यहाँ पर भी ये कर्व्ड लाइन है, यहाँ पर भी ये कर्व्ड लाइन है, ये भी कर्व्ड लाइंस है सारी. तो yes, these figures have curved lines. Using only straight lines, can you draw a figure which has no corners? अब आपसे पूछा है कि आपको स्ट्रेट लाइंस यूज करनी है और ऐसी फिगर बनानी है जिसमें कॉर्नर्स ना हो. तो क्या कोई ऐसी फिगर बन सकती है जिसमें स्ट्रेट लाइंस हो और कॉर्नर्स ना हो? सो आंसर विल बी नो. हम ऐसी कोई फिगर नहीं बना सकते जिसमें हम स्ट्रेट लाइंस यूज करें और जिसमें कोई कॉर्नर ना हो. ऐसा पॉसिबल ही नहीं है. अगर हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो उसमें कॉर्नर्स जो हैं वो जरूर आएंगे. ओके, नेक्स्ट.
Hello everyone, it's activity time. I will show you some objects and you have to tell whether it has corners or not. Also, number of edges and number of corners. So, let's start. Observe all the things very carefully and tell me whether it has corners or not. And if yes, tell me how many corners and edges does it have. The first thing is, what is this? Yes, it's a sheet of paper. Whether it has corners or not? Yes, it has corners. How many corners? Let's count. So, 1, 2, 3 and 4. So, it has 4 corners. And number of edges? Let's see. So 1, 2, 3 and 4. So this sheet of paper has 4 corners and 4 edges. Now let's move to next thing. Now, what is this? It's a Bluetooth speaker. It's like a cuboid. So tell me whether it has corners or not. Yes, it has corners. How many corners? Let's check. So I will show you. Now you can see 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So it has 8 corners and edges. Now we will start from here. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So it has 12 edges. Like a cuboid, it has 8 corners and 12 edges. Now, next object is, what is this? It's an egg. Now tell me whether it has any corners. No corners. And edges? No edges. So there are 0 corners and 0 edges in an egg. Okay? Now, next thing is, what is this? It's an eraser. Okay? This is also like a cuboid. So, how many corners does it have? See? So, again we will count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. It has also 8 corners and edges. Again we will count. 1, 2, 3 and 4. 4, 5, 6. Next, 7, 8, 9, 10 and 11, 12. So it has also 12 edges. Like the Bluetooth speaker, it has also 8 corners and 12 edges because these are cuboid. So there are 8 corners and 12 edges in a cuboid. Okay. Now the last object is this. What is this? It's a ball. So tell me whether it has any corners or not. I can't find. So it has no corners. And whether it has edges or not? No edges. So it has 0 corners and 0 edges. Next topic is tangram.
The tangram is an old Chinese puzzle. From the pieces of the tangram, we can make many shapes of animals, people and things, etc. तो tangram क्या है? tangram जो है वो एक old Chinese puzzle है. उसमें क्या होता है, उसमें आपको अलग अलग पीसेस मिलते हैं, अलग अलग शेप के आपको जो है वो पीसेस मिलते हैं और उनसे आप क्या बना सकते हो, अलग अलग फिगर बना सकते हो. जैसे कि एनिमल की कोई फिगर हो गई या ह्यूमन फिगर हो गई या कुछ और भी अलग अलग चीजें हो गई, वो आप इन शेप्स को यूज करके बना सकते हो. तो यहाँ पर जो टैनग्राम आपको दिखाया गया है वो है 5 पीस टैनग्राम. तो ये वाला टैनग्राम जो है उसमें 5 पीसेस आते हैं. सी 1 2 3 4 5. इसमें कौन कौन से शेप्स हैं? इसमें आपको एक ट्राइंगल दिया गया है यहाँ पर जो कि काफी बड़ा है. ये फर्स्ट वाले से थोड़ा छोटा ट्राइंगल है. देन स्क्वायर, देन अगेन ट्राइंगल एंड दिस इज पैरेललोग्राम. अभी इस शेप के बारे में आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे. तो इस तरह की कुछ शेप्स आपको दी गई हैं. ये 5 पीस टैनग्राम है जो कि रियल में इस तरह से कुछ दिखता है, इस तरह के पीसेस दिखाई देते हैं. तो इसको यूज करके आप कौन कौन सी फिगर बना सकते हैं? Figures that can be formed using 5 piece tangram. तो इस टैनग्राम को यूज करके आप ये फिगर बना सकते हैं. See, this is like a mountain. और यहाँ पर ये जो फिगर है it's looking like a duck और bird and anything else. आप कुछ भी बना सकते हैं, ह्यूमन फिगर बना सकते हैं, एनिमल्स बना सकते हैं या और भी चीजें बना सकते हैं. ये तो हो गई 5 पीस टैनग्राम की बात, ठीक है ना. अब नेक्स्ट जो आता है वो है सी. दिस वन इज न्यू. ये है 7 पीस टैनग्राम. अभी जो हमने पढ़ा लास्ट में वो था 5 पीस टैनग्राम, बट ये वाला जो है वो है 7 पीस टैनग्राम. इसमें कितने पीसेस आते हैं? इसमें 7 पीसेस आते हैं. सी, इसमें कौन कौन सी शेप आ गई? सबसे पहले आ गया ये ट्राइंगल आ गया हमारे पास सबसे पहला. देन अ पैरेललोग्राम, देन अगेन अ ट्राइंगल जो कि पहले वाले से छोटा साइज है उसका. देन अ स्क्वायर, अगेन ट्राइंगल, अ बिग ट्राइंगल और इसी के जैसा एक और ट्राइंगल. सेम साइज है दिस, ये और ये इन दोनों का सेम साइज है. तो यहाँ पर हमको ये 7 पीसेस मिलते हैं इस पजल में डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के. और इन शेप्स को यूज करके आप अगेन डिफरेंट डिफरेंट फिगर्स बना सकते हो. बहुत ही इंटरेस्टिंग फिगर्स बन सकती हैं इनको यूज करते हुए. वी विल सी कि हम इसको यूज करते हुए कौन कौन सी फिगर बना सकते हैं. मैंने आपको सिर्फ थोड़े ही एग्जाम्पल दिए हैं. सी, तो टैनग्राम्स को यूज करके यहाँ पर ये फिगर बनी हुई है जिसमें हमको लग रहा है कि कोई हॉर्स पे बैठा है, इस तरह का कुछ फिगर है. सो यहाँ पर वही 7 पीसेस यूज किए गए हैं और इनसे जो है वो कुछ इस तरह की फिगर बना रखी है. अब नेक्स्ट फिगर में यहाँ पर एक कोई ह्यूमन फिगर है जो कि बैठा हुआ है, सिटिंग पोजीशन है. तो यहाँ पर भी 7 पीसेस यूज किए गए हैं. 1 2 3 4 5 6 7. तो इन्हीं पीसेस को यूज करके डिफरेंट डिफरेंट फिगर्स बना रखे हैं. नेक्स्ट, सी दिस इज स्टैंडिंग ह्यूमन फिगर. ओके, एंड दिस इज एन एरोप्लेन. तो टैनग्राम्स की जो शेप्स हैं उसको यूज करके जो 7 पीस टैनग्राम है तो उससे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग जो है वो हम फिगर्स बना सकते हैं सिर्फ 7 पीस यूज करके. तो यही टैनग्राम पजल में यही इंटरेस्टिंग बात है कि सिर्फ 7 पीसेस होते हैं उसमें और उन्हीं 7 पीसेस से हम बहुत कुछ इंटरेस्टिंग फिगर्स बना सकते हैं. ठीक है, तो ये हो गई टैनग्राम्स की बात. स्टूडेंट्स, यू कैन ऑल्सो मेक योर ओन टैनग्राम. आप भी अपने घर में जो है वो टैनग्राम पीसेस बना सकते हैं. कैसे? आपका मैथ्स नोटबुक होते हैं जिसमें ब्लॉक्स बने होते हैं. तो इस तरह से आप अपनी मैथ्स नोटबुक में इस तरह से आप स्केल का यूज करते हुए इस तरह से लाइंस ड्रॉ कीजिए. यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक,
यहाँ से यहाँ तक, और जैसा आपको फिगर में दिखा रखा है इस तरह से आप ड्रॉ करिए। उसके बाद जो है वो ये शेप्स कट आउट कर लीजिए, तो आपको वैसे ही 7 पीसेस जो है 10 ग्राम के वैसे ही आपको मिल जाएंगे। और आप भी डिफरेंट डिफरेंट जो शेप्स हैं, वो जो फिगर्स हैं, आप उससे बना सकते हो। तो ये 10 ग्राम जो है आप घर पे भी इजीली बना सकते हो, ठीक है। विद पेपर या फिर कलर शीट्स के थ्रू भी आप बना सकते हो। ओके, सो ट्राई इट। Here's another activity. I have so many blocks with me. These are pattern blocks. These are not 10 grams. So don't get confused between 10 grams and pattern blocks. These are pattern blocks. I have so many different shapes with me. Like I have a hexagon. It has 6 sides. I have a trapezium. I have square. I have triangle. So by using these blocks we can make different human figures or transport or any other design. Okay, so let's start. Show you one figure and you have to guess what I have made. So can you guess what I have made? Yes, it's a ship. I have also made different figures using these pattern blocks. So here comes an end of part 1. I will meet you in the next part with next topic. Till then, bye bye.